Good morning student. Today I am going to brief about the topic which is determination of hardness by EDTA method. We can determine hardness of water by two methods, which is soft titration method and EDTA method. Today I am going to discuss about EDTA method. The full form of EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid. From this method, as all of us know that hardness, there are basically two type of hardness, temporary hardness and permanent hardness. These two hardness can be well determined with the help of EDTA method. So in this topic I will discuss about what is EDTA method, what is the principle of EDTA method, procedure, how we determine the temporary as well as permanent hardness and its calculation. And it is the most important topic for MDU. अगर पैटर्न देखें of engineering chemistry of G scheme syllabus, then it is one of the most important topic of chemistry. So firstly, what is EDTA method? So EDTA method, it is the most important and accurate method for determining the hardness of water. Now we will discuss about the principle of EDTA method. Firstly, the total hardness, as all of us know that temporary hardness as well as permanent hardness can be well determined with the help of titrating the water sample against standard EDTA solution. In EDTA method, we will add ammonia buffer solution to maintain the pH of the given solution. As we know that the use of buffer solution is to maintain the pH of the given solution. So we take ammonia buffer solution, which is a mixture of ammonium chloride and ammonium hydroxide, to maintain the pH of the given solution from 9 to 10. And in this case we add EBT as an indicator. Okay, firstly we write the principle में हम यही लिखेंगे कि the total hardness, temporary as well as permanent hardness, can be well determined with the help of EDTA solution. In this solution we treat हार्ड वाटर सैंपल या फिर टाइट्रेट करेंगे हार्ड वाटर सैंपल को EDTA सॉल्यूशन से, उसकी पीएच मेंटेन रखेंगे 10 तक और EBT एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे. और इसमें क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अगर प्रेजेंट होंगे हार्ड वाटर में तो वो क्या करेंगे, EDTA के साथ तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड EBT के साथ लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EDTA एंड एज वेल एज EBT इंडिकेटर. तो EDTA जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, EDTA इज इथाइलिन डाइअमाइन. E से इथाइलिन, D से डाइअमाइन, T इज टेट्रा, A से एसिटिक एसिड. तो इथाइलिन मीन्स 2 कार्बन, सो वी एड 2 कार्बन CH2. डाइअमाइन मीन्स 2 नाइट्रोजन. अमीनो ग्रुप होंगे, अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें टेट्रा एसिटिक एसिड लगे हैं तो हर अमीनो मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 एसिटिक ग्रुप लगा देंगे. एसिटिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH. और इसमें हम क्या, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, सो 1, 2 एंड 3. तो हमने सबसे पहले इथाइलिन लिखा CH2, देन डाइअमाइन N लिख दिया, टेट्रा मीन्स 4 एसिटिक एसिड ग्रुप, सो CH2COOH ग्रुप, CH2COOH ग्रुप, CH2COOH एंड CH2COOH ग्रुप into 2 water molecule. This is the formula of EDTA. अगर हमें इसमें या तो हम EDTA लेते हैं, अदरवाइज we will take sodium salt of acetic acid. तो सोडियम सोल्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम. सो फॉर्मूला सेम रहेगा, CH2CH2N CH2COONA हो जाएगा, COONA. दिस इज सोडियम सोल्ट ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. इसमें हम जो यूज करते हैं इंडिकेटर, उसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है एंड इट इज फुल फॉर्म इज एरियोक्रोम ब्लैक टी. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरियोक्रोम ब्लैक टी, विच इज 2 बेंजीन रिंग विच इज नोन एज नेफ्थलीन एंड डबल बॉन्ड एंड. फिर यहाँ पर फिर दोबारा से बेंजीन और यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप. This is nitro group and this is SO3Na. So S double bond O, bond O negative, Na positive.
तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईबीटी। तो ये तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिखी, उसके बाद ये कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर हम हार्ड वाटर सैंपल लेते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो ईडीटीए के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ईबीटी के साथ लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो कैसे होगा देखिए, और ईबीटी का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, लेकिन जैसे ही हम हार्ड वाटर सैंपल में उसमें ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है वाइन रेड। सो द एंड पॉइंट इज वाइन रेड टू ब्लू कलर। अब देखिए इसमें क्या रिएक्शंस होंगी, ये मैं रिएक्शन समझा रही हूँ तो आपने वही अच्छे से करना है। आप देखिए हार्डनेस जो होंगी वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होंगी। सो Ca2+ आयन और Mg2+ आयन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मेटल आयन। सो M लिख दिया और 2+ आयन, तो मेटल आयन हो गया क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी इज 2। सो M2+ आयन। फर्स्टली अब देखिए जब मैं टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हार्ड वाटर सैंपल लेंगे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हैं, उसके अंदर हम बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसके बाद में हम कुछ ड्रॉप्स किसकी ऐड करेंगे, ईबीटी इंडिकेटर की। जब कुछ ड्रॉप ईबीटी इंडिकेटर की ऐड करेंगे तो वो कुछ मेटल आयन जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे उनसे रिएक्ट करेंगे और मेटल आयन ईबीटी का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विच इज लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब इसकी पीएच जो है वो 9 to 10 मेंटेन है। क्यों 9 to 10 मेंटेन है, क्योंकि हमने इसमें बफर सॉल्यूशन को ऐड कर दिया है। तो फर्स्टली रिएक्शन क्या होगी, मेटल आयन जो होगा वो ईबीटी से रिएक्ट करेगा एट द पीएच 9 to 10 एंड इट फॉर्म मेटल आयन ईबीटी कॉम्प्लेक्स विच इज लेस स्टेबल एंड इट्स कलर इज वाइन रेड। सो इट इज ए मेटल कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद में अब फर्दर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये रिएक्शन हुई, ब्यूरेट में हमने ईडीटीए सॉल्यूशन ले लिया। ईडीटीए सॉल्यूशन को अभी हमने ऐड नहीं किया है। जैसे जैसे हम ऐड करेंगे ईडीटीए सॉल्यूशन को तो रिमेनिंग जो कैल्शियम, कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ने ईबीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिए, बाकी जो रिमेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विद दैट ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन। सो यही बात मैंने आगे लिखी है, देखिए ऑन एडिशन ऑफ एडीटीए the free uncomplexed calcium and magnesium ion form metal ion EDTA complex। तो जो free uncomplex जो बच गए uncomplex metal ion which is calcium और magnesium ion it form complex with the EDTA solution and the complex form is more stable in comparison to that of metal ion EBT complex। सो यही है, देखिए मेटल आयन, रिमेनिंग मेटल आयन होंगे जो वो ईडीटीए से रिएक्ट करेंगे एंड इट फॉर्म मेटल आयन ईडीटीए कॉम्प्लेक्स विच इज स्टेबल मेटल आयन ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। जब ये सारी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद हम फर्दर जब ईडीटीए ऐड करेंगे तो एज वी नो दैट मेटल आयन ईबीटी कॉम्प्लेक्स इज unstable which is less stable in comparison to that of metal ion EDTA complex। तो क्या होगा, ये जो metal ion EBT complex होंगे वो फर्दर रिएक्ट करेंगे EDTA solution से। तो देखिए ये है लिखा, when all the free metal ion present in the sample get complex with EDTA। जब जितने भी फ्री मेटल आयन थे वो रिएक्ट कर लेंगे EDTA सॉल्यूशन से, जब फर्दर हम ऐड करेंगे EDTA सेट फ्री द ईबीटी इंडिकेटर। वो क्या करेगा, ईबीटी इंडिकेटर को फ्री कर देगा बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद द मेटल आयन विच वर ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स विद ईबीटी। जो पहले से ईबीटी के साथ कॉम्प्लेक्स थे उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और ईबीटी इंडिकेटर को रिलीज कर देंगे या फ्री कर देंगे, जिसके कारण एंड पॉइंट में क्या होगा, ईबीटी बाहर आ गया। तो इसलिए जो ईबीटी का कलर होता है ब्लू, सो एट एंड पॉइंट वी गेट वाइन रेड टू ब्लू कलर। दिस इज बिकॉज मेटल आयन, अब मैंने जैसे पहले बताया ये बात फिर से लिख दोगे, मेटल आयन ईडीटीए कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेटल आयन ईबीटी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए थर्ड रिएक्शन क्या होगी, मेटल आयन ईबीटी जो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स थे वो ईडीटीए से रिएक्ट करेंगे और वो बनाएंगे मेटल आयन ईडीटीए स्टेबल कॉम्प्लेक्स प्लस ईबीटी इंडिकेटर रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण एंड पॉइंट पे हमें वाइन रेड टू ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ईडीटीए मेथड। आई थिंक आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ हो तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं प्रोसीजर ऑफ ईडीटीए मेथड। अगर हम प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम हार्ड वाटर सैंपल लेंगे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की हार्डनेस प्रेजेंट है इन ए बीकर एंड ऐड इट टू इट
अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड विच इज बफर सॉल्यूशन टू मेक द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन 9 to 10। ये जो हमने पहले बताया था वही का वही लिखा है। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ ईबीटी इंडिकेटर, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ ईबीटी इंडिकेटर। जैसे ही ईबीटी इंडिकेटर ऐड करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा वाइन रेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। क्लियर है। उसके बाद में सबसे पहले हमने हार्ड वाटर सैंपल बीकर में लिया, बीकर में लेने के बाद उसमें हमने बफर सॉल्यूशन ऐड किया, देन ईबीटी इंडिकेटर ऐड किया। जैसे ही ईबीटी इंडिकेटर ऐड किया तो उसका कलर वाइन रेड हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। एंड आफ्टर दैट वी टाइट्रेट इट विद EDTA solution. So titrate against EDTA solution. तो उसमें क्या होगा, EDTA सॉल्यूशन से जब टाइट्रेट करने लगेंगे तो EDTA सॉल्यूशन जो रिमेनिंग अनकॉम्प्लेक्स कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड द सॉल्यूशन टर्न आउट टू बी कलरलेस। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। एंड आफ्टर दैट देन वी ऐड मोर EDTA सॉल्यूशन, देन जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयन EBT कॉम्प्लेक्स है विच इज लेस स्टेबल, it react with the EDTA solution and it form EBT indicator which is blue color and metal ion EDTA stable complex। तो वही हम लिख देंगे और एंड पॉइंट पे क्या होगा, वाइन रेड टू ब्लू कलर। दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ EDTA मेथड। आई थिंक ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और इस मेथड हम ये जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे हम 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। बिफोर दैट वी फर्स्टली फाइंड आउट द टोटल हार्डनेस ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे मैं ये पहले बता रही हूँ। अगर हम पहले सॉल्यूशन लेंगे, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बना लेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे EDTA सॉल्यूशन को, वो किस टाइप से होगा ये कैलकुलेशन बता रही हूँ। उससे पहले ये जो प्रोसीजर है, एक तो हम बिफोर बॉइलिंग वो हार्ड वाटर सैंपल जो भी हमें सॉल्यूशन दिया गया है उसको बॉयल किए बिना उसको हम टाइट्रेट करेंगे, सेम प्रोसीजर लगाएंगे, उससे हमारे पास टोटल हार्डनेस आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि उस पानी को हम बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे तो उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। वो कैसे रिमूव होगी, बिकॉज टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट विच सेटल डाउन एट द बॉटम। और जब हम फिल्टर करेंगे तो उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होगी, इट मीन्स वाटर में सिर्फ रिमेन रहेगी परमानेंट हार्डनेस। जब हम दोबारा टाइट्रेट करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी परमानेंट हार्डनेस की। जब हम परमानेंट हार्डनेस को टोटल हार्डनेस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस की वैल्यू आ जाएगी। तो यही करेंगे। देखिए, the above procedure is applied with the water sample 2 times. Firstly, one before boiling which give total hardness। जब हम before boiling करेंगे तो हमें total hardness मिलेगी। यही प्रोसीजर लगाएंगे और सपोज करो जब ये प्रोसीजर लगाया तो उसमें वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन हम मान लेते हैं कि V2 ml यूज हुआ। सो इसलिए लिखा है लेट द वॉल्यूम ऑफ EDTA सॉल्यूशन इज इक्वल टू V2 ml। और दूसरा प्रोसीजर हम लगाएंगे आफ्टर बॉइलिंग। बॉइलिंग करेंगे तो उससे हमें परमानेंट हार्डनेस मिलेगी और उसमें जो EDTA सॉल्यूशन यूज किया है उसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं V3 ml। एंड देयर डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, जब डिफरेंस करेंगे टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस देन वी गेट टेम्परेरी हार्डनेस। उसके बाद है इसकी कैलकुलेशन विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए हमें EDTA सॉल्यूशन जो गिवन है उसे स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। तो फर्स्टली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाएंगे जिसमें हम 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा उसको 1 ml ऑफ वाटर में ऐड करेंगे। इस टाइप से हम 1000 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बना लेंगे जिसमें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 1000 ml वाटर, इस टाइप से कर सकते हैं। और उसमें से टुक 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इन ए फ्लास्क। अब 50 ml ले लेंगे, उसके अंदर 10 ml बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे और कुछ ड्रॉप हम EBT इंडिकेटर की ऐड कर देंगे और उसको हम टाइट्रेट करेंगे EDTA सॉल्यूशन से। जब इससे टाइट्रेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम सपोज करो EDTA सॉल्यूशन का यूज कितना आ गया, V1 ml। सो इससे हम इसका V1 ml जो वॉल्यूम होगा वो हम नोट कर लेंगे। अब हमें करनी है कैलकुलेशन। अब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बन गया तो अब कैलकुलेशन में सबसे पहले जो हमें करना होगा, देखिए अब V1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, जब V1 ml हमने यूज किया
तो उसमें हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना लिया 50 ml, मैंने प्रोसीजर अभी बताया स्टैंडर्डाइजेशन में, तो 50 ml हमने EDTA सॉल्यूशन स्टैंडर्ड हार्ड वाटर यूज किया जब वॉल्यूम कितना आया उसमें V1 ml। तो इसलिए ये लिखा है V1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, इट मीन्स वो उसमें हमने क्या ऐड किया 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो ये लिखा V1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब अगर हमने 1 ml EDTA सॉल्यूशन की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा V1 से, सो 50 बाय V1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो ये हो गया हमारी 1 ml EDTA की वैल्यू। अब यही वैल्यू हम टोटल हार्डनेस और टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में पुट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस डिटरमाइन करनी है तो सबसे पहले 50 ml हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया, तो उसमें हमने मान लिया था कि V2 ml EDTA सॉल्यूशन, जो ऊपर अभी मैंने बताया था टोटल हार्डनेस में EDTA सॉल्यूशन का यूज हुआ वो V2 मान लिया, और परमानेंट में जो यूज हुआ उसे हमने V3 ml मान लिया। तो इसलिए 50 ml of hard water is equal to V2 ml of EDTA solution। तो 50 ml of hard water is equal to V2 ml of EDTA multiply 1 ml of EDTA भी लिख सकते हैं, and 1 ml of EDTA solution value is 50 by V1। So V2 into 50 by V1। ये तो हुआ 50 ml के लिए। अगर हमें 1 ml के लिए निकालना हो तो डिवाइडेड बाय 50, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा V2 by V1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब उसमें अगर 1 ml की जगह हमने 1000 ml में हार्डनेस निकालनी हो तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, विच इज मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। और हमें पता है ये जो मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो ppm के इक्वल होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। सो इसलिए इसे हमने लिख दिया 1000 इंटू V2 बाय V1 ppm। ठीक है, सेम ऐसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो उसमें भी हम ये लिखेंगे 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, उसमें हमने सपोज करो EDTA सॉल्यूशन V3 यूज हुआ था, तो हमने ये लिख दिया 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, उसमें सपोज करो V3 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन यूज हुआ है, तो 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इज इक्वल टू V3 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, V3 ml of EDTA into 1 ml of EDTA solution, and 1 ml of EDTA solution value is 50 by V1। So अगर हम 50 ml की जगह 1 ml लेते तो डिवाइड बाय 50, तो V3 by V1। उसको हम फिर क्या करेंगे 1000 ml हार्ड वाटर सैंपल के लिए निकालेंगे, तो 1000 इंटू V3 by V1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, विच इज 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। सो इट्स यूनिट इज ppm। दिस इज परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू 1000 V2 बाय V1 माइनस 1000 V3 बाय V1। इन दोनों में से V1 एंड 1000 कॉमन आया, तो 1000 बाय V1 कॉमन निकाल लिया, V2 माइनस V3 इंटू ppm। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। So thanks for watching and please like, share and subscribe my channel.